Yeah, Ankit, we are good to go. Okay, thanks. First of all, thanks for joining us, Bhakti ji. All the participants and all our, the future of India, the youths who have shown their interest in this interaction. We have a very inspirational lady of Madhya Pradesh, who has been to international forums, and then she decided that the change has to be done right from the root. So we are joined. We are graced to have Bhakti Sarma here. Thanks for joining us, Bhakti ji. Thank you so much, Ankit ji. Thank you, and congratulations for your great initiative on the Youth for Good Governance. Thank you. To start with, for the information of all our participants and all our viewers, we are kickstarting our Good Governance Week with this inspirational, with the sharing of this inspirational journey that Bhakti Sarma ji has done so far, and she is already on the track, and there is a long way to go, I guess. Yeah. Yeah, indeed. So to start with, to kickstart the interaction, we would love to hear from you what has been your journey so far. What are your insights and what are your learnings, and how are you planning to use those learning for larger impact for change? Ankit ji, one of the best privileges that I have got is that I've been actually working at the grassroots level of our country, because पंचायतों की जब भी बात होती है, so that's something really important. और हमारे देश में पंचायतें एक अहम रोल प्ले करती हैं. With the country where we live, we have 65% of the population staying in the rural areas of our country, and the best part is that the 65% is the youth of the whole nation. Having approximately 4.25 lakh villages and 2.25 lakh panchayats, it has been a journey of a lot of ups and downs. It has been a journey of a lot of experiences, a lot of insights about how does the country works, what is the actual system, what are our traditions, what is our culture, और लोगों की सोच क्या है, मान्यताएं क्या हैं, और लोग किस किस्म की ग्रासरूट लेवल पे डेमोक्रेसी में चाहते हैं कि उनके नेता कैसे हों. So ये सब चीजें देखने का, सीखने का एक बहुत अमेजिंग सा एक जर्नी रहा है. It's almost been 6 years now. On 22nd February in the coming year, I'm going to be like 6 years old a sarpanch, and बहुत कुछ सीखने को मिला है. And the best part, what I've learned is, हम हमेशा अपने एक urban mindset से सोचते हैं कि हम rural perspective को change कर देंगे. ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और ये मैंने अपने आप को मान लिया है. एक छोटी सी बात जो मैंने ऑल दिस वे सीखी है कि वहां पे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको अपनी सब चीजें पता हैं. द ओनली इशू इज द न्यूएंस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. अगर हम उसके ऊपर हिट कर देते हैं, और वी कैन डू वंडर्स देन. So making them out of the comfort zone was something that was always my top priority, and I was working on it. Right. As you mentioned that it's been 6 years, but I think in 6 years what you have achieved has been dream for millions, because getting appreciation by the president and by the prime minister of India, it's such a huge thing. So it's also like my dream coming true. It's everybody's dream. It's everybody's dream to exactly. Meet the prime minister, meet the president. Indeed, yeah. Exactly. So when it comes to now coming to the core agenda, that is the governance. In India, when we think of governance, we come across a statement which is very popular. That is, policy में problem नहीं है, implementation में problem है. 200%. Now the body of panchayat, the 3-tiered panchayati raj system, is, I think, the fulcrum of implementation, because that's where the actual action happens. True. In rural India. So what do you think? I mean, how can we change? How can we visualize a change in this statement कि policy में problem नहीं है, implementation में problem है? ये solve कैसे होगा? What do you think? Okay. पहले मैं आपको एक 6 साल पुरानी घटना बताती हूँ. जब मैं सरपंच बनी, so there's the next door panchayat, there was a lot of work done and they could manage a lot of funds. So he was the 3rd time sarpanch out over there, because वही सरपंच पिता, सरपंच बाप, सरपंच भाई, so he was the सरपंच बेटा.
So I asked him, मैंने कहा भैया, you've done tremendous work in your panchayat and you could manage a lot of funds. How did you get that? You know what was his words? He said, भक्ति भाई अभी 6 महीने लगेंगे ये पता करने में कि अंगूठा कितने लगाना है. He said, yes, it's going to take approximately 6 months to understand the whole spectrum of and how does the panchayat thing works. Okay. Right. So one thing that, you know, that clicked, why am I sharing this anecdote with you is that we really need to understand that yes, implementation is a big issue in our country. There are like enormous policies जो ठंडे बस्ते में बंद होके वापस बैठ जाती हैं, जिनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी प्रॉपर अवेयरनेस की वजह से लोगों तक पहुंच नहीं पाती. This is one, you know, a major big breakthrough if we could get it. Second is about implementation. I'm a person who always says that, you know, if we have educated youth or educated people with ample number of experience at the grassroots level, it's going to actually flourish the grassroots democracy of our country. If you ask me that how I'm able to do all these things, to be very honest, I had my eyes and ears open और मैंने हर पॉलिसी को बहुत ध्यान से समझा, पढ़ा और तब कर पाई. Because you can believe that a girl who's just done her masters in political science, उसको कैसे पता होगा कि नहीं यार 4x1 का माल लगेगा तो जो रोड है कंक्रीट की अच्छी बनेगी, 25 फीट के बाद मुझे उसमें वहां पे गैप छोड़ना पड़ेगा. See, I'm not an engineer, I'm not a civil engineer. Right. The only thing is that I studied on it. Most of the सरपंच are very, you know, they are on such a dicey position कि वो उसको स्टडी नहीं कर पाते. तो इम्प्लीमेंटेशन तब पॉसिबल हो पाएगा जब ग्रास रूट तक लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है, प्रॉपर अवेयरनेस मिलती है. 2-3 आप चीजें समझें. हमारे देश में हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या हम बात करते हैं जब इसकी उज्ज्वला योजना की, 8 करोड़ परिवारों में हुआ. कैसे पॉसिबल हुआ? न्यूज़पेपर्स ने इतना ज्यादा छापा, सारे सोशल मीडिया पे छपा, हमारे टेलीविजन में आया, तब पॉसिबल हो पाया. तो लोगों को चीज को बताना, समझाना, अवेयरनेस, ये काम अगर सरकार अच्छे से कर पाती है और चीजों को लोगों के सामने स्ट्रीमलाइन करके दिखा पाती है, तब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. वरना पॉलिसीज तो बहुत बनती है, हर दिन बनती हैं, आज भी कोई ना कोई बनी होगी. तो पॉलिसी इज तो इसके बारे में क्या करना है, सरकार को थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर एक तो फोकस करना है, लोगों के बार बार काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, कैसे हमें काम को आगे बढ़ाना है. और सबसे महत्वपूर्ण चीज कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि जो सरपंच होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हो पाती, इसमें सरकार की वजह से कभी कभार चूक हो जाती है. अगर सरपंच की और उप सरपंच की और पंचों की कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स अगर अच्छे से होंगी तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी पॉलिसीज को सही ढंग से नीचे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. और बिल्कुल I completely agree with you that there is a huge capacity gap, you know, in terms of the expectation I mean that we have had with or we have with panchayat functionaries and the capacity that they have actually Yes. You know, that is generally eventually deployed to the implementation of schemes. तो जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस या जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें मतलब एज अ सरपंच व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू? हमारी तो ट्रेनिंग हुई नहीं थी, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बट आई एम लकी, यू नो, देन आई हालांकि मेरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रशिक्षण वर्ग में मैं जा नहीं पाई थी, बट आई वाज द रिसोर्स पर्सन विद NIRD. Okay. Yes, and I did go to Jammu जब वहाँ पे elections हुए थे last time, and to a lot of other states as well. But receivers point पे मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगी कि you know आज हमें, मुझे लगता है, inclusive governance की तरफ सोचना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगा महाराष्ट्र का एक कॉन्सेप्ट है महिला आम सभा का, जिसको आगे जाके बहुत प्रमोशन मिल रहा है. तो ग्राम सभा देखिए सिर्फ 3 होती हैं, बट महिला सभा और आम सभा के अंदर अगर हम लोगों की भागीदारी, जिसको जन भागीदारी कहते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा पाएंगे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पहली बात. और वो पंचायतों में मोमेंटो तैयार कर देगा, मोमेंटम जिसको कहते हैं कि नहीं अभी पंचायतें अच्छा काम कर पाएंगी. बिकॉज बार बार जब लोगों के साथ सेशंस होते हैं, लोगों के जब जहाँ पे अधिकारी बैठे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे होते हैं, उनके साथ विचार विमर्श होता है, डिबेट होता है, डिस्कोर्स होता है, दोनों तरफा की पॉइंट्स रखे जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर इतना ज्यादा लोगों को इंक्लूसिवनेस के साथ जोड़ा गया, तो लोगों को आज हर चीज की एक नॉलेज हो गई है, अवेयरनेस हो गई है. सो रिसीवर्स पॉइंट पे मुझे लगता है कि GPDP इज समथिंग रियली वेरी गुड. इस टाइप के, और महिला सभा को प्रमोशन मिलना चाहिए, आम सभा को प्रमोशन मिलना चाहिए.
इन 2-3 के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं और जब भी चुनाव हो उनके अंदर अगर हम थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने वही कह रही हूँ, अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग हो सरपंचों की एक अच्छे लेवल पे हो, और मुझे लगता है कि हम एक साथ ना दें 5 साल की, साल में हम उसको उनके साथ डिस्कस करें तो एक अच्छा हमें उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। राइट। और जब ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है और लोगों के लाइक पीपल्स पार्टिसिपेशन, व्हेन दिस बिकम्स द center point of the debate, do you Yes. think that the initiatives like Saurabh Mukherjee has taken this YFGG, this is also an initiative to mobilize people who are very interested towards the capacity building or empowerment of panchayat as a body of governance. So do you think that the bodies which are not the state, like they are not the government, they can play a role? I mean, do you think that? Of course, let me tell you, see, we are in a country where the pressure groups and NGOs and bodies and societies and trusts like Youth for Good Governance and any other for that matter, they've Right. always been key components in our country. Right. A very small example is अभी हमारी सरकार खुद आउटसोर्स करती है बहुत सारे लोगों को when it comes to implementation of the policies. Right. बी इट द जल जीवन मिशन, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उसमें तक एनजीओस को स्टेक रखा गया कि आपको जाके लोगों को अवेयर करना है। हम आप सब खत्म करिए, आप स्वच्छता सर्वेक्षण में देखिए कितने सारे एनजीओस ने और कितने सारे ऐसे सोसाइटीज और ट्रस्ट ने अपना रोल अपने अपने स्टेट्स में, अपनी सिटीज में और विलेज लेवल पे जाके, पंचायत लेवल पे जाके उन्होंने काम करा है। I know a number of NGOs across, not only in my, let's not talk about India. I'll only talk about my city, Bhopal. I know a number of NGOs have been actually working on it and they've been very dedicated. Right. Tell me something. Who are these Corona Yodhas and Corona warriors? Right. The best part is you guys never stop. You guys are tremendously working for the upliftment of the people at the grassroots level. So actually hats off to you. You people are your own warriors. हमें आप जैसे warriors की जरूरत है क्योंकि आप लोगों के साथ मिलके हम अब जो एक नेटवर्क तैयार करेंगे उस नेटवर्क में, और हम सिर्फ सरकार की पॉलिसीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा 50 चीजें और हैं जिन पे हम फोकस कर पाएंगे। हम हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, हाइजीन पे, एजुकेशन पे, हम जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टार्टअप्स को कितनी जरूरत है आप जैसे एनजीओस की। आज की डेट में अगर आपकी जैसी कोई सोसाइटी हमें मिल जाए तो हम तो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की लाइन लगा दें अपने गांव में। हमें दिक्कत कहाँ आती है कि आप जैसे हमारे पास लोग नहीं होते, हमें मार्केट नहीं पता चलता कहाँ से प्रोवाइड होगा कहाँ से नहीं होगा। तो आप लोग तो हमारे लिए की कंपोनेंट है, और आप बेस्ट बात ये कि आप लोग हमारे लिए ब्रिज हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पंचायत। राइट। सो जब मतलब as you mentioned that this is, I mean, there are multiple levers which need to move. एक आम नागरिक होने के नाते मुझे अपने गांव के सरपंच या गांव के पंचायत के साथ अगर इंगेज होना है तो मुझे क्या इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए? अच्छा, इंगेज किस सेंस में होना चाहते हैं? मतलब इंगेज ताकि हम जो भी हमारे पास क्षमताएं हैं या एटलीस्ट हम उनके इनिशिएटिव्स में 2 हाथ लेके पहुंच जाएं। हाँ जी। अरे तो वो आपको, अच्छा देखिए, वो आपको वेलकम तो करेंगे, मगर उनको पहली दिक्कत ये होगी कि अच्छा अंकित जी चुनाव तो नहीं लड़ना आपको अगला वाला। तो पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि सरपंच से ज्यादा मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैंने काम कैसे शुरू करा, क्योंकि ये एक मुझे खुद लगा कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट मेरा लकीली सक्सेसफुल हो गया, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरा हमेशा से जो ज्यादातर डिस्कशंस रहे हैं पंचायत कैसे काम करती है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार पंचायत में सरपंच ने, और ऐसा आमतौर पे बहुत जगहों पे होता है, सरपंच कोई भी चीजों को साइन कर देता है कि हाँ हमको ये पंचायत में काम करने हैं, फोरम लेकर आए, पास करवा दिया। मगर अगर आपको जेन्युइनली काम करना है, एक तो ग्राम सभा में कंपलसरी आपको आना जाना चाहिए, ये तो हो गई सरकारी बात। गैर सरकारी बात ये हो गई कि थोड़ा यूथ को कलेक्ट करिए वहां के, आप उस यूथ से वहां की बात करिए। मैं यहाँ पे बहुत सारी पंचायतों में देखती हूँ कि जैसे एक अमिताभ सोनी जी हैं, केकड़िया करके यहाँ पे एक पंचायत है, वो वहां पे काम कर रहे हैं, वो ब्रिटिश वहां पे थे, आई थिंक इंग्लैंड में थे या ब्रिटेन कहीं थे, एंड ही जस्ट लेफ्ट हिज जॉब, sorry, he was in London, he left his job and then he came over here, okay, and he started working there. But उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने यूथ के साथ अपनी एंगेजमेंट्स बढ़ाई, महिलाओं के साथ बढ़ाई, बच्चों के साथ बढ़ाई। अंकित जी, as a responsible citizen, not only of the country but also of your panchayat, if you go and speak to the youth and ask them and address their problems and grievances, and then find a solution to them either via government or via some kind of a NGO or a society or a body, वो आपको चीज वहां का हीरो बना देगी। यू वुड बी द नेक्स्ट अमिताभ बच्चन,
ट्रस्ट मी, व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑन लाइटर नोट, बिकॉज हम जब सीधे लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उनकी बातें पता चलती हैं। मेरा महिलाओं के साथ सीधा इंटरेक्शन था, दैट वाज वन रीजन कि हम वहां पे महिलाओं की ट्रेनिंग करवा पाए। मेरा महिलाओं अभी ही आज मुझे आपके इस मीटिंग से पहले आधा घंटा पहले एक बच्ची का फोन आया कि दीदी मैं पंचायत में बुटीक खोलने वाली हूँ। आप इमेजिन करिए मेरे लिए कितने गर्व की बात है। मेरा सीधा इंटरेक्शन है वहां की लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, कोई इश्यूज हम सीधे डील करते हैं, हम सीधे बात करते हैं। बहुत ज्यादा बीच में मीडिएटर्स और मीडिएशंस को लेकर नहीं आते। आप सरपंच को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सचिव को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बट लोगों से वहां बात करिए, तो लोगों की समस्याएं, ग्रीवेंसेस आपको सुनने को मिलेंगी। और कभी भी एक रिक्वेस्ट करूंगी, सरपंच को बिल्कुल ही गलत मत ठहराइए, बिकॉज सरपंच इज द ओनली पर्सन जो अपनी आलोचना अपने मुंह पे सुनता है। Never you would see any elected representative in our country would be listening about himself or herself right on his face. Every day we get up in the morning and we sleep. We meet our voters, we interact with them 24/7. Exactly. And that's how that builds that kind of confidence in us कि हमको तो अपनी बुराई सुननी है। तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, बट yes, above all, you should go and directly meet and interact with the people. I'm sure they also have a lot of ideas about their panchayat. See, at the end of the day, you and me, we stay in the cities, okay? So there are certain things, there's certain concepts that they are well aware of and not us. So why not to work as according to them? Right. Yeah. Right. Thanks for that. That was really helpful. When it comes to the election, because that's kind of first climax when the journey starts. I think the election of Sarpanch is the most dangerous election in India that we witness, because those who are contesting against you knows everything about you, your daily activity, your daily business. They don't need any khabari for that. Yeah. How do you deal situations like that? Okay, so that was my first election where I contested. Okay, that was in 2015, and there were a lot of things, and हम लोगों ने बिल्कुल आप समझ लो almost zero budget पे चुनाव लड़ा था। बट आप समझिए आज भी हमारे देश में कास्ट इक्वेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हालांकि आर पंचायत इज वेरी मच not a panchayat who has been working on such concepts, because in my panchayat I have 35% OBC, then we have 10% SC, approximately 10% ST, 35% SC also, and 10% general and 1 Brahmin. No, that's me. Yes. So इससे आप समझ सकते हो कि हमने जाति पे चुनाव नहीं लड़ा। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, कास्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, सरपंच का इलेक्शन देश का सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन है, क्योंकि पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। पहली बात ये, बहुत सारे लोग इसके अंदर चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसी पंचायतें जहां 8-8, 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी इसको प्रॉपरली अगर देखें तो इलेक्शन मैनिफेस्टोज अगर तैयार हो तो पंचायत में चुनाव बहुत अच्छे से हो पाएंगे। हमने बहुत कुछ फेस किया था, हमारा बट बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट था। हमने इस चुनाव को एक छोटा चुनाव समझ के नहीं लड़ा था। हमने इस चुनाव को ऐसा लड़ा था कि ये बिल्कुल हमारे लिए सीएम टाइप का चुनाव है। We had this very good team of approximately 60-65 young boys and girls जो इस पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे, हमारे बारे में वहां पे जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमने इलेक्शन का कन्वेसिंग करा पूरा अपनी पंचायत में। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को मतलब अगर ऐसा मौका मिले, चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, बट मौका मिले तो जरूर कूदना चाहिए। ये अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। ये आपको डेडिकेशन सिखाता है, डिवोशन, डिटर्मिनेशन सिखाता है, क्रिएटिविटी सिखाता है, आप कैसे नई नई चीजों को कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट होता है सरपंच के चुनाव में 90% वोटिंग तो होती ही होती है। आप किसी भी पंचायत में देख लें, और कोई निर्विरोध बन जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है कि सब लोग उस पर रजामंदी कर रहे हैं। एंड ये एक ऐसा चुनाव है, मैं आपको कुछ एनेक्डोट्स बताती हूँ। So, इस चुनाव में ऐसा होता है कि आपको पता है अंकित जी, मैं आपको इसलिए वोट नहीं दूंगी क्योंकि 3 साल पहले मेरे बच्चे की शादी में आप नहीं आए थे। अभी कन्वेसिंग करते समय आपने सबके घर का पानी पिया, बस हमारे यहाँ आप नहीं पी पाए। ये चुनाव के सच में मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। चुनाव के मुद्दे में तो 10 साल पहले जो आपने करा था वो आपके सामने आ जाएगा कि आपने हमसे ऊंची आवाज में बात की थी इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे।
right. और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हम देश में जब भी कोई भी मुझसे पूछेगा तो शायद या आपसे मैं पूछूंगी कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप बता देंगे, मगर सरपंच के चुनाव में इंसान वोट देने भी जब अंदर जाता है तो सबको बोलता है तुम्हें ही दूंगा, पर अंदर जाके किसको देता है ये किसी को नहीं पता होता। ये रियलिटी है सरपंच के चुनाव की। सो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट। या बिल्कुल and the utilization of optimum sovereignty. Yes. बिल्कुल शो ही नहीं करेंगे किसको दे रहे हैं। They are like, yeah, I'm going to give to you, I'm going to give to the other person, I'm going to give to Saurabh. At the end of the day, I know whom I'm giving, and they would even not react. So they're very reactionless people. They have this very strong, simple face, Right. without expressions. Yeah. Exactly. So before we move to the questions, now the most important topic, that is the women's participation in local governance. Yeah. Because generally, what we have seen in last couple of years, यही दिखा है कि वोट जो है वोट का मतलब एक तरीके से ठेकेदारी होती है। घर में एक इंसान से बात कीजिए और पूरे परिवार का वोट मिल जाता है। So, but then this use of sovereignty, this use of voting right is getting individualized. Now it's getting the penetration has been hard in last couple of years, where the man is voting for other party and the women women are voting for the other party or other candidate. How do you see this increasing or changing the paradigm of panchayat governance or panchayat leadership? Ankit ji, let's take it in two ways, okay? Two parts. So one is about voting and the other one is about women contesting elections, okay? Right. These are two important topics. क्योंकि आपने elections की बात की, इसलिए I think I have to throw some light on the other part as well. Sure. तो पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में मैंने आपसे कहा 90% वोटिंग होती है, ठीक है? Right. जब हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ था तब उस टाइम पे उन्होंने कहा 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे, ठीक है? तब ये क्वेश्चन था कि महिलाएं जो है वो चुनाव नहीं लड़ती, उनके पति लड़ते हैं, बेटा लड़ता है, भाई लड़ता है, देवर लड़ता है, यही बात हुई थी। Right. ये हम आज भी सुनते हैं। इसके अंदर पहली बात एक शिफ्ट आया है। कैसे आया है हम वो समझते हैं 1 मिनट के अंदर। पहले 50% में ऐसा होता था कि करीबन 45% सरपंच पिता या सरपंच बाप सरपंच भाई चुनाव लड़ते थे, ठीक है? 20 साल पहले इसमें शिफ्ट आया, महिलाओं ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और ये आंकड़ा 30% तक चला गया। 30% women are now responsible कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा फेस है और हमें चुनाव लड़ना है, ना कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा देवर नहीं लड़ रहा, ठीक है? जो लास्ट चुनाव और ये चुनाव आया है इसमें हम देखेंगे कि इंक्लूसिवनेस महिलाओं की इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जब चुनाव होंगे और होने वाले हैं इसमें 10% ही मात्र ऐसी महिलाएं होंगी जिनके देवर, पति या भाई जो हैं वो देखेंगे और महिलाएं रबर स्टैंप होंगी। तो पिछले 20 से 25 सालों में एक ये शिफ्ट हमको देखने को मिला है। ये क्यों देखने को मिला है? और जो आपने ये बात कही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महिला अपना वोट अलग देती है, पुरुष अलग देता है। सरकार की कुछ 2-3 पॉलिसीज आई हैं जिसका आपने सुना होगा SRLM और NRLM। सुना है। ये क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज में बने हैं, वहां की महिलाएं 2 चीजों से स्ट्रांग हो गई हैं। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा उनका इंट्रैक्शन, तीसरा उनका टीम और चौथा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। ये 4 चीजें जिसके पास भी आ जाती हैं उसको थोड़ी सी चीजों की समझ होती है। Because when you are working as in a self-help group and you are, mediating, you're talking to the officials, you gain that confidence, and that's how you understand the working of one self-help group, and that's how you understand the working of the panchayat. Right. So, and different programs which have been making women financially independent, like giving them property में share, like, उनको loans देना, उस पे उनको incentives देना, subsidies देना और स्व सहायता समूह को continuously बढ़ाना, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने महिलाओं को बहुत strong कर दिया है। And you and me, we have to believe one thing, whatever people say, our panchayats in our country, they are hardcore feminist. Why I say that is because कि पूरा का पूरा पुरुष का इकोसिस्टम जो है वो उसकी फैमिली के आसपास ही रिवॉल्व अराउंड करता है। Right. आपको मैं ऐसे 1000 एग्जांपल्स अभी बैठे बैठे दे सकती हूँ जहां पे महिलाएं हर जगह बहुत स्ट्रांग है। दिस माइट साउंड कि अरे क्या बात करी, बट दैट्स द ट्रूथ। पुरुष कितना भी सामने दिखे मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मगर घर में कोई भी फंक्शन होता है तो महिला डिसाइड करती है कि घर में कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा।
Right. जी, आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एक जमीनी स्तर की बात बता रही हूँ। तो एक तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है, उनको बात करने का तरीका आ गया है। स्मार्टफ़ोन्स में तो वैसे भी सबकी कहते हैं ना कि 4 चाँद लगा दिए हैं। तो सोशल मीडिया ने लगा दिए। आज हर बच्चे के पास व्हाट्सएप और फेसबुक है, गाँव पे। मेरी खुद की पंचायत में मेरे पास व्हाट्सएप बाद में आया था। मेरी पंचायत की लड़कियों के पास पहले व्हाट्सएप था। एंड व्हाटएवर दे डू, दे जस्ट सेंड मी द पिक्चर्स। सो ये 3-4 चीज़ों की वजह से महिलाएं बहुत स्ट्रांगली अब सामने आ रही हैं। तो उनको अपनी वोटिंग राइट्स के बारे में पता चल रहा है। तो वो उन वोटिंग राइट्स का सिर्फ एमएलए, एमपी चुनाव में यूज़ नहीं करती, बट अपनी पंचायत के चुनाव में यूज़ करती हैं। और अब वो कहती हैं, एंड ट्रस्ट मी, पंचायत का चुनाव सिर्फ वही जीतता है जो घर की किचन में जाके महिला से बात करने की हिम्मत रखता है। ये भी एक कड़वा सच है। यस, ये कुछ ऐसे मैं आपको लाइव एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ क्योंकि हमने इन चीज़ों को करा है एंड देन वी हैव सीन एंड वी हैव फेस्ड एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स आल्सो। तो this is something that's actually coming up, and I think this is something really good because महिलाओं को inclusiveness में अब आगे बढ़ना चाहिए. They need to understand कि यार तुम you have become a सरपंच और you're voting, तो बाद में किसी को ग्राम सभा में कहने से अच्छा कि तुमने काम नहीं करा, it's better कि हम अपने किसी व्यक्ति को वोट दें जो हमारे काम भी करे. तो महिलाएं अपनी two-way responsibilities को अब समझ रही हैं. Right. Yeah. Thank you. Thanks. That was awesome. That was awesome. So now I open the forum for questions. So I think I would request the delegates to unmute yourself or switch on your camera or not, is your preference. Then you can ask your question, please. Thanks, Ankit. This is Abhinav from Bangalore. Ma'am, मेरा एक question है. In Bangalore, we are for the panchayat election. Focus is not on the real issue that we are facing, like STT, sewage treatment plant, or other issue. The focus is becoming more on the caste issue or the Kannadiga people or non-Kannadiga people or something different, which is not related to what we are focusing. Yeah. And the worst part is that national parties are getting involved in it. Instead of जो अभी real issue को solve करना है वो नहीं हो रहा, and focus is getting diverted into the non-productive issue. So आपने जब पंचायत इलेक्शन लड़ा था, so what was your focus? Your focus was mainly on the ground reality, और या फिर आपका यहाँ पे नेशनल इश्यूज की थे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अभिनव, पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हुआ होगा. मुझे नहीं लगता कि नेशनल पार्टी इतने छोटे चुनाव के अंदर कभी भी हाथ डालेगी. आप इस बात को समझिए, ठीक है? और कास्ट इशू के लिए मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि आज भी हमारे देश में कास्ट इश्यूज बहुत बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पर आई एम सॉरी टू से कि हमने उस कास्ट का जो इतना वो जो सो कॉल्ड कैलकुलेशंस है उस पे क्या हमने काम करने की कोशिश करी कि नहीं करी. मैंने पहले ही कहा कि मेरी पंचायत में आई एम द ओनली ब्राह्मण, वी आर द ओनली ब्राह्मण फैमिली. और मैंने आपसे कहा मैंने पैसा खर्च नहीं करा ज्यादा चुनाव में, हमने काम करके दिखाया. हमने अपनी पंचायत का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करा था. मेरा कल भी एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें ये बात करी, मेरे फेसबुक पे भी है. 99% काम जो हमने उस समय कहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हो, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेके हो, क्लाइमेट को लेके, मैलन्यूट्रिशन को लेके, महिलाओं को लेके, सरकार की पॉलिसीज को लेके, 36 से ज्यादा पॉलिसीज पंचायत में हुई हैं. 10 करोड़ से ज्यादा का पंचायत में काम हुआ है. पीएम आवास योजना की बात हो, हमने जो कहा हमने वो करके दिखाया. तो आज हमारी पंचायत देखिए, हम एक पंचायत अगर इतने ऊपर के स्तर पे पहुंचती है, या अगर यूथ फॉर गुड, अगर जो आप लोग का इतना यूथ फॉर गुड गवर्नेंस है और गवर्नेंस वीक में अगर सोचते हैं कि इस पंचायत के व्यक्ति से बात करी जाए तो 6 साल में कुछ तो काम करा होगा. तो बैंगलोर में या कहीं पे भी कास्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है. उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी 3 जनरेशंस लग गई इस पंचायत में कास्ट इक्वेशंस को डाइल्यूट करने के लिए. 1975 से काम कर रहे थे, 2020 हुआ है, तब जाके हम डंके की चोट पे कह पाते हैं कि हम जाति में भरोसा नहीं करते. शुरुआत दादाजी ने करी, कंटिन्यू पिताजी ने करा, आगे हम उसको बढ़ा रहे हैं. तो जनरेशंस लगती है, समय लगता है. मैं बार बार कह रही हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इज टू ब्रिंग पीपल आउट ऑफ द कंफर्ट जोन्स, एंड दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स. ओके, नोबडी वांट्स टू कम आउट. आज कोई मुझसे भी कहेगा भक्ति शर्मा सुबह 5 बजे की ठंड में रजाई हटाओ, क्विल्ट हटाओ और काम पे लग जाओ, इट्स अ टफ जॉब. So, आपको उनके ब्रेन पे जाके हिट करना है. That is the bigger issue and the bigger task. I do get there are issues, but कोशिश करें. देखिए, देश का जो युवा है उसके साथ बेस्ट पार्ट ये कि अगर वो चुनाव में उतरेगा तो वो बहुत एस्पिरेशनल होगा और वो बहुत ज्यादा ये कास्ट बेस्ड इश्यूज पे कभी भी बात नहीं करेगा.
तो हम कोशिश करते हैं कि देश के युवा को कम से कम नीचे स्तर पे ऐसे चुनाव में आना चाहिए। पैसा कभी भी दिक्कत नहीं होता, 50 स्टार्टअप्स हैं, सरकार बहुत पैसा दे रही है, आप अपना खुद का भी स्टार्टअप करें, एक तरफ अपना फाइनेंसेस को देखें और दूसरी तरफ चुनाव को देखें। और गांव में बहुत ज्यादा पर्क सरकार दे रही है, ऐसी मैं आपको 50 योजना अभी बैठे बैठे गिनवा सकती हूँ जी। ठीक है अंकित? Any other question? नहीं अंकित जी, इज दैट ओके? और आपको लगता है कि मतलब No, I think it was awesome. It was good. Saurabh, you want to ask us? Yeah, Ankit, I think there are a few more questions in the Facebook Live. So please. Vikshit may just raise it and then I will come. Sure. Yeah. So there was one question that Rahul has asked, Rahul Sharma. He's asking, ma'am, आपके mind में कैसे आया that you want to contest the elections? आप तो उस time you were, I guess, abroad at that point of time. So he's just asking about that. नहीं भाई, आपको शायद थोड़ी सी गलती हुई है। मैं अब्रॉड में उस समय नहीं थी, मैं यहीं इंडिया में थी। एंड चुनाव जो थे वो दे वर ड्यू इन सितंबर अक्टूबर and somehow they got delayed in 2014 and then they were held in 22nd February 2015. Okay, so माइंड में भाई बहुत सिंपल है, ऐसे आया कि वो मेरा पैतृक गांव है, मेरे दादाजी वहाँ काम कर रहे थे, मेरे पिताजी वहाँ काम कर रहे थे। और जब मैंने पढ़ाई करी थी अपनी पॉलिटिकल साइंस में और मैं जब अपनी सिविल्स की तैयारी कर रही थी, आई गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिसीज एट द ग्रास रूट लेवल, जो हमने बात सबसे पहले अंकित जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो हमेशा मुझे लगता था कि यार इस गांव में इतने सारे लोग आते हैं, बिकॉज आवर फैमिली इज अ वेरी सोशल फैमिली इन भोपाल। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक यार यहाँ इतने लोग आते हैं बट यहाँ पे रोड अच्छी नहीं बनी, यहाँ पे अभी भी वही लोगों का स्तर कैसा है। तो इस जीवन के जीने के स्तर को, इस लाइवलीहुड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एंड आई थॉट कि द बेस्ट पावर इज टू हैव द अथॉरिटी एंड देन डू समथिंग। मैं ये नहीं चाहती मैं कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊं और कोई कहे आप किस अथॉरिटी से यहाँ आई हैं। तो जब आपके पास अथॉरिटी होती है, देन इज द राइट टाइम टू यूज योर पावर and then show the people that yes, we can also do something really good for the nation. Right. So I'll just come in. Pehle Bhakti ji, thank you so much for taking out time and devoting that for our session. As a young organization, it is a really motivating factor for all of us. So with your speech, I think we are very confident about the motive of our organization, because there are 2-3 factors we felt, and very exclusively we named our organization Youth for Good Governance. So our emphasis was on governance because we felt it's after so many years of independence, youth should start engaging more and more with the government than being on the other side, only concentrating on protesting and kind of criticizing. So criticization should be a very productive one. So first we felt that youth should be given an opportunity or given a platform to engage more with the government so that they can understand the real issues better. So for that, we are trying to engage more and more internship opportunities, fellowship opportunities with the Gram Panchayat members, not with the district level or state level, so that they can engage more. The Gram Panchayat can get more fresh ideas and they can get more real time idea about what is happening in the ground, how the system is struggling to bring change. It's not always that the system is wrong. They have also a lot of challenges. We thought youth should be aware of that. Otherwise, they're always influenced by certain ideologies and ideas. So, and second, we thought maybe we go for higher studies in developmental studies policy, but we learn more of theory than the practice. So we thought we should have some intervention at that level. We thought let us have some clinical studies with colleges, that where they spend entire 1 year or 2 years in the duration of the course with the Gram Panchayat members, trying to work on some schemes or certain things like that. And third, again, when we talk about innovation and startups, if youth don't have practical ideas about the ground, they can never innovate to the real life problems. So thinking of all this, we thought it's very important that we come to a forum. And as and when we are getting opportunity to interact with people like you who are so experienced and who once have a golden opportunity to lead a golden life, and they have compromised that and come to work with the people, I think that is something which is motivating us day after day. And we would also like to engage with you in long term, how we can involve youth students so that they get experienced with your kind of work which you are doing, the problems, and we can work hand in hand.
So I think it was a really, really enriching session for us. And in Facebook, I was really amazed to see the amount of reach that happened today. It's almost touched 1,500. And so it's a beautiful signal how youth are connected with your cause. And I think it was a great session. No, I really appreciate you, Saurabhji, doing such a great thing, and your out-of-box thinking has actually made you classified. And this is really something very good that you've thought that the youth of the nation should come and be a part of the good governance. It's always good to criticize. It's always good to build up a pressure. But at the end of the day, this is our country, this is our state, and we really need to think for the betterment of the people. This is our first responsibility towards the nation. So yeah, congratulations to you and to your team for the great hard work that you've put in, and I wish you good luck for your future endeavors. Thank you so much. Jai Hind, Jai Kisan, Jai Bharat. Namaste. Thank you, madam. Jai Hind. Thank you. So